So chapter 7, which is ESG analysis, valuation and integration, is that chapter where everybody from decision maker to the analyst, to the investor, to the investment banker in ESG, everybody finds something interesting and relatable here. But before we go inside the chapter, I would like to put an anecdotal story just to make it relatable to all of you who even doesn't come from the investment background. So I am talking about a story of Amara Capital, uh, and how they have adopted ESG investing. Now, it's a mid-side investment firm based out of Mumbai, known for its sharp equity picks. Whatever they pick in the equity market, through value-driven approach. So they have a unique approach, value-driven approach, which is their investment thesis, and they have a very loyal clientele base. Yeah, and this clientele is not only Mumbai-based HNIs, but across world they have influences. So HNIs, NRIs, you name it, everybody, invest with them. But one day, everything changed for them in 2019. Okay, it is started with a client email which received and said, "Can you tell me ESG score of a particular company, I cannot name that, you have invested on our behalf." That was the simple email sent by an NRI lady to this company in 2019 before even COVID. Analyst who was sitting on the desk that day was Neha. She blinked ESG and she had heard of it, environmental, social, and governance, like everybody today, but never thought it applied to her daily stock picks. So let's look into that. She replied confidently on that reversal on their chat. And that night, Neha and her team began their journey into the ESG analysis. Phase one, they started with, and this is how they have discovered the whole ESG analysis, valuation, and integration in their investment cycle. So phase one, they picked up discovering ESG risk hidden in balance sheet. Yeah. So they started looking into those balance sheets and try to understand where I can find this ESG related stuff in this. They started with a company in their portfolio called Polytech Limited, as imaginary company, let's put that way, a plastic manufacturing firm with a strong cash flow and high dividend. On paper, everything looked perfect for her. But when Neha applied ESG analysis, a different story unfolded. She looked for environment. Polytech was repeatedly fined for river pollution near its largest plant in Kolaba. Social, local media has reported protest by workers, specifically the female, over unfair labor practices. Governance, the same chairman had been charged for 22 years and 3 board seats were filled by family member. Is it something which you have not seen in your life? All of us? I'm asking a question here. We have seen it throughout our journey, right? We have seen such kind of practices across. But when you put into the lens of ESG, we find striking differences looking at the same company through financial balance sheet and through ESG sheet. Suddenly, the team realized while the financial looked very strong, ESG risks were immense. And these were the risks not priced into the valuation model, which Neha and her team has considered it. And now they were worried if a regulator cracked down or if a boycott is started, the share prices would have collapsed like a deck of cards. Second, phase two, they started looking into the valuation impact of this story. To test this, they applied a discounted cash flow and ran 2 scenarios to understand the impact of the same. First scenario, all of you understand scenario here, right? Everyone. Yes, yes, Yeah. Yes. Scenario analysis, everybody understands. Scenario means yes, yes. putting all factors together. So not one factor that today rain will happen, but rain will happen, no employee will come to office. All those factor related will be changed. And she and her team took 2 factors.
One was base case scenario where no ESG analysis existed before, and there was a ESG adjusted scenario. So these were the two scenario the team has decided will be considering. First scenario, valuation was 500 crore rupees. First scenario is a small cap company. The valuation was 500 crore. In the second scenario, when they adjusted ESG risk, which I have just highlighted to you, after accounting for expected fines, higher insurance premiums, or and possible drop in the sales due to bad press releases, valuation dropped to, you know how much? 360 crores. How much is drop in percentage term? 140. We are talking about 280. 28% of drop in valuation. 28%. You think it is a joke when you talk such kind of percentage drop in a stock? It's a huge one. Huge. If you announce that by in any means, the stock in any will collapse to that number, because stock market is always a leading indicator. Clear? That is how the 28% difference has shocked the whole team. That what we started as just a casual exercise in the night of wee hours of Mumbai actually ended up with them seeing a disaster in front of them, that it can happen at any point in time. Neha realized and reported in her report back to her manager, ESG isn't about ethical alone. It is about identifying financial risk and value driver that might be missed by any of my team member going forward. So phase 3C started in the same night. It was quite a night. ESG integration across portfolio was recommended. Whole team at 2 o'clock has driven to the office. Teams sat together. Firm began integrating ESG at entry level, and they have taken all the possible measures which was required. They started with adding ESG screener. So instead of normal screening, that how much profit badha, how much return on investment aaya, how much, all the parameters, price to equity, price to book. Apart from that, they also decided they will have ESG screener going forward for all the companies which was under this company. With a poor environmental record, definitely will be out. That was the screen number one. Screen number two, they built a scorecard. So instead of putting a screen, they created a scorecard using two methods. The method number one was qualitative, and method number two was quantitative metrics for governance. Yeah, for that they have created a score. Third, used ESG database to third party tool to rate and monitor companies. Right? So rating and monitoring of company, for that they have started recommending and creating a ESG database के इस कंपनी में 3 मेजर इशू निकल के आए हैं और सब कंपनी में हजारों होंगे. Then even they adjusted their cost to capital through which they do the discounting for valuation. Valuation के लिए discount करना पड़ता है to a rate which you think is a hurdle rate of the market, or a peer rate which you think below that I should not be earning. For example, for our case, Jayasankar ji, stock market has given last year 12% on an average. Average. So that is my hurdle rate कि उससे नीचे तो मुझे नहीं मिलना चाहिए. Few people, maybe Rajni ji is very conservative, so she want 8%, right? क्योंकि मुझे True. बॉन्ड उनको बॉन्ड मार्केट में उससे कम कभी रिटर्न नहीं मिला है. तो she will take a hurdle rate of 8%. Based on everybody can have their own hurdle rate. So now this company wanted that their cost of capital should also consider adjusted cost of capital, which will be considering the ESG risk factor inside it. So 8% तो मुझे बॉन्ड में मिल रहा था, इसलिए मुझे चाहिए ही चाहिए, प्लस 2% एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि वो कंपनी में ESG रिस्क कहीं ना हो. अगर ESG रिस्क वाली कंपनी है तो 2% और एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, तभी उस कंपनी को अडॉप्ट करूंगी अगर वो 10% से ऊपर दे रहा है. दैट इज हाउ रजनी इज डिसाइडेड. 14% is decided by Jay Sekhar ji. Subodh ji wants at least 50% return. Every 2 years, he wants to double his money. So he put 54%. That's how everybody has decided adjusted cost of capital in their portfolio. They found that high the company which has a high ESG risk,
always underperformed during the market downturns, always underperformed, who had a higher risk and thereby had a very least resilience. This was the story I thought everybody should be able to understand and follow it. Anybody has a trouble or any part here, phase one, two, or three. If you have a trouble, tell me now and I will try to explain that phase more better. Otherwise, I have another approach. If you are still not convinced and understood, what I will do, I will show you some examples like Unilever example. How many of you want to hear that? Or you have a trouble in phase one, two, or three? Tell me now. But so trouble तो नहीं है, but we would like to hear Unilever thing. ओके चलिए, तो यूनिलीवर करते हैं उसमें। रियल लाइफ में अगर आप यूनिलीवर का स्टॉक देखोगे तो इट इज ऑलवेज अ सेफ्टी स्टॉक। ओके, सेफ्टी स्टॉक मतलब क्या बोलते हैं उसको? ओके, The investment is safe. इन्वेस्टमेंट इज सेफ और इट इज अ लिटिल काउंटर इंट्यूटिव। जैसे फार्मा स्टॉक होता है, फार्मा स्टॉक जब आपका पूरी मार्केट ऊपर जाएगी तो स्टेबल रहता है या मतलब थोड़ा फ्लक्चुएटिंग नीचे की तरफ रहता है। बट व्हेन होल मार्केट इज गोइंग अपोजिट, फार्मा स्टॉक जंप्स। क्लियर? सो इसी तरह यूनिलीवर को हमेशा बोला गया है कि इट इज अ ग्लोबल कंज्यूमर जायंट विच इज लिटिल स्टेबल इन नेचर and it will give you a return which is based on how consumers are behaving in market, right? So consumer अगर ज्यादा spend कर रहा है, of course Unilever will give you good return, and consumer थोड़ा reluctant है spend करने के लिए, Unilever will give you stable return. Now, this company over years has shown that they live by sustainability. As we have seen in several case study in 2021, they have changed their even base case. So they are very prominent and they are honest about and transparent about their ESG reporting. So it's a sustainable living brand. They have a separate brand which they count as a sustainable living brand, continuously grew faster than their normal brands, where the even marketing you might not have seen happening on those What's cases. the brand, sir? So, Unilever पे क्या आइटम थी उसकी? sorry, Unilever as a company was spending or आपको नहीं, यूनिलीवर एज ए कंपनी में कुछ ब्रांड्स हैं जिसको वो लोग कैटेगराइज करते हैं सस्टेनेबल लिविंग ब्रांड में। एक उनका आइसक्रीम आता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड इट इट Yeah, अभी I recently read, just recently, mean last week only. एक मिनट मैं चेक ही कर NIC करके तो नहीं है? सस्टेनेबल लिविंग ब्रांड, वेट लेट मी चेक बिकॉज़ आई एम Yes, कंफ्यूज। yes, NIC है, mostly NIC है. क्या है एनआईसी? व्हाट इज दैट Yes. एनआईसी? NIC is a new ice cream launched. I saw its ad. ओके, बहुत ज्यादा ब्लिंकिट पे आ रही है आजकल। नहीं, नहीं recently नहीं है, मेरा 6-8 महीने के डोंट ऊपर थिंक हो सो गया. इट इज। See, some brands like Nirma had given a shake for Unilever in those years. मैंने मैं बताता हूँ सस्टेनेबल लिविंग ब्रांड में which has grew. Okay, let me give you now some data here. In 2019, basically they have reported that they are starting with sustainable living brand accumulations. Dove, Axe Linux, Omo, seventh generation, all these they count as a sustainable living brand. Why? Because they use 100% recycled plastic packaging for Dove production. In Axe, they are offering a range of product which reduce the water impact. Excel Linux is partners with environmental organization to promote sustainable practices. Omo, which uses 100% biodegradable packaging for their market. Seventh generation brand focuses on eco-friendly household and personal care product, which has grown by 69% on year compared to Unilever growth, which is around 5 to 7%. Clear, everyone? So I need to do little research myself on this topic. But these are the some brands which were quite interesting in nature, and they grew faster, not only on the revenue numbers, but in profitability as well from the rest of the portfolio of Unilever. Unilever integrated ESG into everything after that success. Yeah, since 2013, 8 people say even 8 they were started reporting in some form of some form of sustainability. But later on, they got really serious about it, and then they decided they will integrate ESG in everything, and that's how from 121 tons of carbon dioxide emission reported in 2021, after revision in 2023 they got it 56 tons
of carbon dioxide equivalent. Can you see how much difference? 121 कहाँ है और 56 tons कहाँ है? देख रहे हो More आप? than 50%. Yeah, absolutely. That's how they have reduced their carbon dioxide emission, getting Funny. conscious about it. Okay. So this is Sir, why? Because they realize that valuations sometime support such kind of sustainable product in future. And that's why they integrated it. Investor rewarded this particular company for long-term thinking and higher valuation and trust, even though Corona has passed. Are you with me? Anyway, कोरोना के टाइम पे लाइफ बॉय का सेल्स बहुत बढ़ गया था एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट पॉइंट ये है कि पीपल हैव रियली अप्रिशिएटेड दिस कंपनी. sir, वो quality walls है आइसक्रीम, but they have demerged from January क्वालिटी 25. वाह. Quality walls, they are demerged in January 25. Subodh ji is a research guy. And so I recommend him now in each batch that hire him as a research team member. He will add much more larger value than anything else. Yeah. In last batch he has really. रजनी जी आपने भी देखा ना लास्ट में अपना कार्बन अकाउंटिंग के बैच में हाँ हाँ, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. बहुत कंट्रीब्यूट रिसर्च में तो मतलब नो बडी कैन टेक हिज He has हैंड. lot of time in hand ना सर, इसीलिए कर पाते. रजनी जी इतना टाइम रजनी जी बाप रे कोई बाप. भी कर लेगा, बट ये है कि देखो हाँ सुबोध जी आप देख रहे हो अगर आप सरकारी कंपनी में काम कर लिए ना देन यू कैन बी ऑन योर फीट ऑल द टाइम. या मतलब देखिए क्या ह्यूमर है. दिस इज अमेजिंग. चलिए गुड. दिस इज व्हाट वी वांट इन दिस ग्रुप राइट. दैट इज व्हाई वी लव दिस ग्रुप. So result was that Amara Capital repositioned itself later on and became a ESG conscious investment firm. Their assets management grew exponentially as the in market asset under management specifically for ESG segment has increased. Of course, in 23 they had a pullback as well because few companies, specifically Quant, if you know, there was a company called Quant which was very aggressive in ESG, has been caught in 2024 for doing forgery. So in 23, 24, whole market anyway has taken a back on ESG side. 25 looks like better for Indian market, but let's see how it goes. But seeking sustainable investment was a right choice, which Neha as a candidate started because some NRI, woman has sent her email. And just to give you that story and complete it, Neha, she became a featured speaker now. She has spoken with me on global ESG conferences and in TEDx. And this story, of course, I have changed some names here and there, but is a real time story for transformation. Moral is this that ESG analysis, valuation, and integration is not a trend, not a bookish knowledge. It's a So next. this case study is available. हमारा case study is available नहीं 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 मैं नाम online. चेंज करके बता रहा हूँ. इन द नेक्स्ट इवोल्यूशन नाम चेंज करके बता रहा हूँ सुबोध जी. अब उस पर रिसर्च कीजिए Okay, कुछ okay. नहीं मिलेगा आपको. I thought inside name you changed. Company name is same. I thought inside name you changed. In company name is same. It's a next level evolution in smart investing. It's about seeking risk. Like I just said that Subodh ji is a risk taker. So 50% उनको risk चाहिए. तो return 54% होना चाहिए. Then in that case, valuing more accurately company with ESG will help him to align finances with his future aims, targets, and he's a good traveler as well. I have seen his some photographs. He loves to travel, isn't it, Subodh ji? इसलिए Yes, आपको yes. ज्यादा रिस्क पसंद है. June 15 to July 15th, I am not there. आसी I'm going to मतलब ये US. बोला नहीं कि इनके पास एक प्लान रेडी है ट्रैवल का. So, okay, now if you want to learn this one, let me give you 10 different anecdotal understandings, quick ones, okay, which you can relate why ESG valuation and how to integrate it. Let's take it with health check analogy, okay. जैसे हम लोग फुल बॉडी चेकअप कराने जाते हैं, right? Where we do not just look for weight and what is my BMI, yeah, but also we check health rate, blood pressure, sugar level, ESG analysis exactly is like that. That you do not only check the financial part of it, but actually companies nowadays are looking beyond the profit and they want to know how this company is treating environment, people, and how it is governed.
that which people are behind it. These are the three key fundamental which you can compare with the health check. So valuation is that health indicator which covers these part. And integration means that you use this health data over a time to decide whether you want, Subodhji want, Rajniji wants to invest in that company or not. Okay, not immediately, बट आप उसको ऑब्जर्व करते हो, ट्रैक करते हो कि उसका इस साल में क्या परफॉर्मेंस था, लास्ट ईयर क्या था, उसके पहले क्या था, एंड देन यू डिसाइड वेदर दिस इज अ राइट कंपनी फॉर मी टू इन्वेस्ट एंड नॉट. अगर मान लो अंशिका को हाउस बाई करना है कल बैंगलोर में, राइट अंशिका, वंस यू शिफ्ट टू इंडिया, इफ यू वांट टू बाई अ हाउस here, Yeah. it will be considered, of course not. Delhi pasand hai usko. You won't buy a house just because it looks good, right? Or it is in the good location. But you will check that whether there is a water damage, neighborhood safety is there or not, legal ownership of paper है कि नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत चलता है ना. So that is the governance part. Legal check is governance. Neighborhood safety is the S part, which is social part. And damage, the water damage which this building is going to make or is there in the building, is the E part. That's another analogy. And here ESG analysis is like a due diligence on the real estate property, which Anchika will do, right? Or valuation is that where she will adjust for these factors. अरे पानी इसमें गिरते रहता है 24/7. कोई अगर इसको एजेंट बेचना चाह रहा होगा, उसको बोलेगी भैया पहले इसके लिए पैसे कम करो, राइट? 10%, 5% तो कम हम करा ही लेते हैं कि उसका पाइप फिक्स कराना है मेरे को. वैल्यूएशन इज दैट एडजस्टेड प्राइस विच सी विल अग्री टू पे हियर. इंटीग्रेशन मीन्स मेकिंग दिस चेक पार्ट एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. उसके लिए वो पेपर एक लॉयर से लिखवा के लेके जाएगी जिसमें वो सारा चेकलिस्ट होगा. करते हैं ना ड्यू डिलिजेंस, तो सबने किया होगा. सुबोध जी आपने करवाया ही होगा, अपने जब अपने घर कहीं भी खरीदा होगा. रजनी जी, इफ यू हैव डन दैट, अब तो वो Yes, yes. प्रोसेस है, इनबिल्ट प्रोसेस है, राइट? इफ यू आर टेकिंग अ लोन तो ड्यू डिलिजेंस तो होती ही होती है, बैंक वाले करते हैं. और वो पेपर हम मान सकते हैं उनसे कि आपने किया था तो क्या क्या देखा था. या आप अब बिल्डर से भी बोल सकते हो, मी दैट फुल सेट. सेम थिंग इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईएसजी इन इन्वेस्टमेंट साइकिल एज वेल. कोई भी कंपनी में नया काम आप लोग चालू चालू करना चाह रहे हो, यू हैव टू आस्क फॉर दिस ड्यू. Now, many companies, recently I purchased one, so SBI started taking those due diligence money separately from us. करेक्ट, एक्स्ट्रा मांग रहे हो जबकि एक्स्ट्रा वो उनका 1500 रुपये कॉस्ट है. एक्स्ट्रा. हाँ, पहला जबकि एक्स्ट्रा उनका, कॉस्ट अभी चालू किया, पहले एक्स्ट्रा नहीं था, अभी एक्स्ट्रा चालू किया लेना. क्योंकि ये इससे एसबीआई के पास स्कोप नहीं बचा है ना, उनके पास मार्जिन कम रहता है. सो दिस इज अनदर anecdotal evidence. Now, having said that, let's see what are those different 10 10 outcomes, learning outcome, which we should be learning about. So पहला learning outcome रहेगा कि quantitative and qualitative ESG integration कैसे होता है. How to measure a quantitative indicator and include into our calculation, and how to check qualitative, मतलब उसमें नंबर नहीं लगा सकते, लेकिन किसी ने बोला कि यहाँ पे पीपल को पीटा जाता है कंपनी में, या ये फॉक्सकॉन की कंपनी है जहाँ बाथरूम ब्रेक्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड, फॉरगेट अबाउट सुट्टा ब्रेक्स. तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है अपने को वैल्यूएशन में, ईएसजी एनालिसिस में और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, इज द फर्स्ट लर्निंग आउटकम which this chapter expects from you. Second is challenges in ESG integration itself. We need to know what are those challenges and pitfalls that. लगता तो बहुत अच्छा है कि पानी को चेक करना चाहिए, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पानी का कोई डैमेज है क्या, या नेबरहुड बहुत खराब है क्या, स्लम एरिया है क्या, ये बोलना अच्छा है, बट इंटीग्रेट करना मुश्किल है. क्यों? स्लम एरिया के बगैर कहीं बड़ी अच्छी बिल्डिंग, अंटालिया भी बीच में है, स्लम के बीच में, एक साइड में पूरा स्लम है, दूसरे साइड में रोड है. अंटालिया मतलब मैं धीरू भाई अंबानी जी के घर की बात कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स आप मुकेश के नाम से उस बिल्डिंग को जानते हो, मैं धीरू भाई अंबानी के नाम से जानता हूँ. बनाया मुकेश ने है, लेकिन बना तो उन्हीं के नाम पे. सो पॉइंट ये है अंटालिया का भी, विदाउट नेबरहुड चेक. आप नेबरहुड चेक करने जाते अगर मुकेश अंबानी जी, धीरू अंबानी जी के प्रॉपर्टी पे, तो वो कहीं मकान ही नहीं बन पाता. बन पाता क्या? स्लम के सामने बनाना है, या स्लम के लोग डिस्टर्ब होंगे, तो वहां पे आप नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे एक एनालॉजी होती है कि लेबर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं. तो आपको मालूम है उस घर पे कितने लोग काम करते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? उस घर में जो इंटालिया की बिल्डिंग है,
I don't know how many floors, I'm forgetting the floor numbers, but I remember how many people works there. कितने लोग काम करते होंगे ये बताइए. अच्छा, अरे तो that's 25 या 26 फ्लोर है, 1500 लोग काम कर रहे हैं. हाँ देखिए नंबर्स. या 100+ it will और be. अब आप सोचिए यही अगर वो बनाते साउथ मुंबई में जाके सोवो में, जहाँ लड़की बात करेंगी, सोवो वाली लड़कियों को बोलते हैं कि जब बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो अगर वहां पे वो ले जाके कंपनी बनाते तो उनको एम्प्लॉय मिलता क्या? वो मिल रहा है क्योंकि वो जगह पे है, राइट जगह पे है. तो कोई अपना हस्बैंड को, कोई अपना वाइफ को, कोई अपना स्पाउस को, कोई अपने बच्चे को वहां पे काम करने देने जा रहा है. या ऑफ कोर्स नाउ तो लोग मरते हैं क्योंकि वहां शाहरुख खान भी आके डांस करता है ऑन अनंत अंबानी शादी, तो लोग मरते हैं लाइन लगा के जॉब लेते हैं. बट पॉइंट ये. Yes, sir, but that company, that building is managed by some company who is paying charges to all this. There is a separate company to maintain that building, including housekeeping, everything. अपने नाम पे थोड़ी रखूंगा मैं. Yeah. भाई इतना तो स्मार्ट हुई ना, कल कुछ हो आ जाए Means सब मेरे. पूरा management, total management is with somebody. It's okay. My point is, I was just giving anecdotal evidences. So challenges need to be understood. Material ESG issue again comes here and plays a bigger role. You have to describe the challenges in identifying and assessing material ESG issue in your operation. Scorecard and tools also you need to learn. That's why this chapter has a lot of value. कि कैसा scorecard दिखता है, how it works, how you can prepare given that you have nothing, नो नॉलेज अबाउट दैट इंडस्ट्री और कंपनी. उसके लिए स्कोर कार्ड कैसे बनाना है, उसकी रेटिंग कैसे करनी है, दैट लर्निंग यू शुड बी डूइंग. ईएसजी डिस्क्लोजर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट, यू हैव टू इंटरप्रेट अ कंपनी डिस्क्लोजर विच दे डू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कभी कभी आप देखते हो कि हम अचानक से डिस्क्लोजर आती है, राइट, कि हमारे यहाँ हमारे डायरेक्टर छोड़ के जा रहे हैं. तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे और कैसे काउंट करोगे, कौन सा पोजीशन में उसको करोगे, क्या वैल्यूएबल का नाम होता है, वो आपको इस टॉपिक में सीखने के लिए मिलेगा. ईएसजी वर्सेस ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एनालिसिस का कंपैरिजन आपको आना चाहिए. You have to able to explain how ESG analysis complement the traditional financial analysis. ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एनालिसिस मालूम है नहीं मालूम है, कोई नहीं आपसे पूछने जाने वाला इस चैप्टर में. बट दे डेफिनेटली विल आस्क यू दैट व्हाट यू ऐड टू दैट एनालिसिस, वो मालूम होना चाहिए. तो उसके लिए अगर पी रेशियो में आप एडजस्टमेंट करने जा रहे हो तो ई में कर रहे हो कि पी में कर रहे हो, दैट यू शुड बी नोइंग. पी रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो. अर्निंग मतलब प्रॉफिट कितना है उस कंपनी का, और उस कंपनी का स्टॉक का स्टिकर कितना चल रहा है. उन दोनों का अगर रेशियो ले रहे हैं तो मेरा ईएसजी कहाँ फिट होएगा उसमें, वो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए. तो दिस चैप्टर इज दैट वे इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉल्यूम वाइज थोड़ा कम है इन्वायरमेंट से सुबोध जी, बट इंपॉर्टेंस वाइज इट हैज लॉट ऑफ इम्प्लीकेशन, इट हैज अ रियल टाइमिंग. Okay. ठीक है, इसमें भी सबने प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा और पूरा एक बार में नहीं कर सकते हैं. तो क्या करेंगे, अब हम अंशिका को बोलेंगे कि अंशिका प्लीज लिस्ट डाउन ऑल द केस स्टडीज. ठीक है, केस स्टडी. हाउ हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट गुड बाय लिसनिंग टू नेहा स्टोरी? Very nice. नाइस ना, मजा आया ना. Yes, 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 definitely. रिसर्च में नहीं आ रहा है सुबोध जी के, बट स्टिल ही इज फीलिंग गुड. व्हाट अबाउट रजनी जी? ठीक अच्छी स्टोरी थी सर, समझने में तो आसानी It हुई. is. It is. इट इज सुबोध, जयशंकर जी एंड ये अंशिका. केस स्टडी जो बुक में है उसको लेके भी सवाल आएंगे क्या, कभी आ सकते नहीं, हैं? सवाल उससे डायरेक्ट कभी नहीं आएंगे. ट्रस्ट मी, डायरेक्ट सवाल कभी नहीं देगा ये सीएफए इंस्टीट्यूट. बट उसका इम्प्लीकेशन, उसका लिंकेज का सवाल आपके पास जरूर आएगा. तो आप अगर केस स्टडी जानते हो देन यू विल बी एबल टू अप्लाई इट. एप्लीकेशन वाले जो मैंने बोला ना 20% आएंगे एप्लीकेशन वाइज. ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन तो 50% में भी रहता है. जो आपके पहले बेसिक वाले भी 50 क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आ रहे हैं, उसमें भी एप्लीकेशन ही पूछते हैं वो. बट बुक रिलेटेड एप्लीकेशन जहां पे दिया हुआ है कि इसका मतलब ये और इसका कैलकुलेशन ये, सो आउटपुट इज ये, वो वाले 50% और 20% जो एप्लीकेशन आएंगे वो आपके केस से ही समझ में आने वाले हैं. कि अगर एक सिचुएशन है वेयर अ कंपनी इज स्टक विद गवर्नेंस पॉलिसीज, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, right? So you will cite those case. Not, of course, you will not cite. They are not subjective questions, but you will be able to find the correct answer based on method of elimination. ठीक है? So that is how the fourth and fifth traditional finance analysis वाला part है. Then you have, so Anchika, can you list down that? And क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, so we will only हाँ sir, I'll do that. yeah, we will only select those ones which are good ones, okay, and has some value, and then we will select. ऐसे भी इतने लोग हैं नहीं जितना उसमें केस स्टडी है. Now, impact on
industry company performance where you are trying to analyze a ESG factor that may affect industry and company performance will help you. Impact of security valuation also need to be seen, that how ESG will impact, will impact in next security valuation range or asset classes. Different asset classes has a different kind of impact of same ESG problem. Environmental का मान लो flood, will it impact same to a company which is doing in space technology, or will it impact same a company who is running electricity in that locality? Flood किसको ज्यादा impact करेगा? Just a question. Second one, ऑब्वियसली स्पेस में तो ऐसे भी मार्स पे जाके रहने वाला है, उसकी वो तैयारी कर रहा है टेस्ला, राइट? आपको ट्रबल है, आपकी एनर्जी आज डिस्टर्ब होने वाली है. So that is how we have to learn. Similarly, for asset classes also has the same situation. Equity in that company and debt I have given in that company, which one will be most impacted? अगर हम लोग एनर्जी कंपनी की बात कर रहे हैं, सुबोध जी ने वहां पे डेट में पैसा नहीं, रजनी जी ने डेट में पैसा लगाया, सुबोध जी ने इक्विटी में पैसा लगाया और वो कंपनी बह गई पानी में. किसको सबसे ज्यादा लॉस होगा? इक्विटी वाले को. इक्विटी वाले को. तो वाले को ना। समझना है, वो भी हमें समझना है. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन. अप्लीकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस आल्सो नीड टू बी सीन कि क्या होता है कि जब आपका डेट नहीं इंपैक्ट हो रहा है लेकिन इक्विटी इंपैक्ट हो रहा है, तो हो सकता है आपका डेरिवेटिव्स मार्केट में इंपैक्ट हो. तो अगर आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, अल्टरनेटिव एंटरप्राइजेस, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट है, तो वो सब इंपैक्ट होंगे. मे बी डेट नहीं हो रहा है, बट डेट उस मार्केट से भी लिंक्ड हो जाता है. अगर सीबीओ है, एमबीओ है, इस तरह का डेट पे डेट के जिन्हें लगा के रखा है, तो वो डेट एसेट ही नहीं है, तो डेट ही कहां बचा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉर्गेज बेस्ड ऑब्लिगेशन में इन्होंने लगा दिए पैसे, या ऑफ कोर्स इज द पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, बट ही थॉट इट इज अ डेट. इसीलिए तो क्राइसिस आया ना यूएस में. लोगों को लगा कि डेट का ही तो प्रोडक्ट है, डेट के ऊपर किसी ने डेरिवेटिव बना के बेच रहा है, तो ये डेरिवेटिव ना समझ के लोगों ने डेट समझा, राइट? और फाइनेंशियल क्राइसिस आया अपने हाउसिंग मार्केट में, ऑटोमेटिकली वो एमबीओ भी डूब गया. लेमन ब्रदर, एक 150 ईयर ओल्ड कंपनी, लेकर डूब गए. वॉस्ट अवे, कंप्लीटली वॉस्ट अवे. कितने लोगों का जॉब गया? बहुत इंडियन काम कर रहे थे वहां पे, बाय द वे, बहुत ही कर रहे थे. Okay, so we need to be careful. Application across asset classes has to be seen, and then ESG credit rating, how a credit rating agency approach ESG credit scoring is what we are going to learn in this chapter. ESG analysis, integration and valuation को तीन तरह से आपको समझना चाहिए. First is compliance and client demand. Investors generally integrate nowadays ESG to meet their regulatory requirements. कौन? कंपनी नहीं, इन्वेस्टर भी इसको इंक्लूड कर रहा है तो मीट देयर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. व्हाई? इफ यू आर ए सिग्नेटरी ऑफ प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग. जैसे आप रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग समझ लो, ये कंपनी हमेशा इन्वेस्ट रिस्पॉन्सिबल कंपनी में ही करेगी. रिस्पॉन्सिबल मतलब क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल, सोशल रिस्पॉन्सिबल एंड गवर्नेंस रोबस्ट companies, right? So to satisfy their client expectation, which might have mandated ESG integration despite personal belief about its impact or return on risk, they have to invest only in ESG companies. मुझे लगता होगी नहीं, ESG is hawks. I am president of America. I hope I should become, but that is a hope, right? Today, who is there? Thinks the same way. It's a hawks, right? So if he thinks a hawks, it is his personal belief. As a America, I still need to invest in ESG if I have given money to America. We know who has given money to America, which is China. 50% of debt is owned by them. But still, do they control America? No. They are getting the tariff much harsher than anybody else because Trump knows how to negotiate. Coming to next point, which you will be considering for ESG analysis, valuation, and integration, is risk mitigation and return enhancement. Many investors integrate ESG to lower their investment risk. अगर लंबा पैसा बनाना है तो आप ऐसे कंपनी में डालोगे जो क्लाइमेट के अगेंस्ट जा रहा हो? ऑफ कोर्स नहीं ना. फ्लड आएगी उस दिन कंपनी उसकी डूब जाएगी क्योंकि उसने कभी एडॉप्शन और मिटिगेशन पे काम ही नहीं करा. इतना तो हम लोग सीख चुके हैं. आर यू गाइस फॉलोइंग दिस कंसेप्ट कि अगर कंपनी बिलीव ही नहीं करती है ईएसजी में, will they prepare themselves for tomorrow's eventuality, at least on the climate front? Absolutely not. If they are the real gutsy guys,
like Trump, he will say, go to hell, right? I don't care, right? I am a company who doesn't consider the climate change. Finish. End of लॉन्ग the टर्म story. में क्या अमेरिका को अफेक्ट नहीं करेगा? पता नहीं, उनको नहीं करता होगा, वो अलग प्लानिट पे रहते हैं ना, उनको तो मार्स जाना है ना सबको लेके, तो उनको नहीं करता है इनफेक्ट। वो मार्स का एनवायरनमेंट में अपना एनवायरनमेंट बना के जिएंगे, यहाँ के एनवायरनमेंट को किल कर दो। गुड आइडिया ना। यहाँ जब रहना ही नहीं है अगले 100 साल में, तो वाई आई शुड बी वरीड अबाउट। एलन मस्क को सूट करता है, बट वाई ट्रम्प इज सेइंग आई डोंट नो। एलन मस्क को सूट करता है ना, उसकी कंपनी का बिलीव ही यही है कि इस अर्थ पे कोई रहना ही नहीं चाहिए। इट विल हैव अ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। अरे कैसे हॉस्टाइल बन रहा है, पहले ये डिस्कस कर लो, डिबेट कर लो। आप हॉस्टाइल इसलिए बन रहा है क्योंकि क्लाइमेट आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। हॉस्टाइल होगा तो ऑफकोर्स आपको प्लानेट छोड़ना है, तब तो आपका बिजनेस मॉडल करेक्ट है। हिज बिजनेस मॉडल इज ऑल अबाउट दैट एवरीबडी शुड गो टू मार्स एंड लिव देयर। So he is right as a businessman, but Mr. Trump is a president who has to take care of other 50% of the voters as well who has not voted him. But unfortunately, this time the tilt is toward him, so he can dictate anything. So thereby, risk mitigation and return enhancement need to be considered in this discussion. Finally, enhanced analysis and stewardship, जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है। स्टूअर्डशिप मतलब लीडरशिप लेके आना अपने डिस्कशंस में। वो तभी हो सकेगा जब आपका एनालिसिस इंडिकेट करे प्रॉब्लम कहाँ है। और वो कैसे होगा इंडिकेशन? बाय इंटीग्रेटिंग एंड टेस्टिंग ऑल दिस रिस्क ऑफ ईएसजी। ईएसजी का रिस्क पार्ट एंड अपॉर्चुनिटी पार्ट यू इंटीग्रेट इनटू योर इन्वेस्टमेंट with additional tools and techniques and for the analysis, which are scoring, ratings, tilting, all those matrices you have to apply to learn how to improve engagement with this company, जो आपने 6th chapter में पढ़ा है, and company management, which will enhance the stewardship activity. Hence, you will be able to protect your long-term interest and ultimately contributing to a better decision making at your investment company or your company level, potentially clearer business models. ओके, कोई हैंकी पैंकी नहीं, जो है क्लैरिटी के साथ है। अब यहां पे करते क्यों है? वाई इन्वेस्टर इंटीग्रेट ईएसजी? ठीक है, पहला बात, इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं और उसका एम ये है कि इन्वेस्टर वांट टू यूज वेरियस अप्रोचेस टू इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्रेटर्निटी में एक वर्ड होता है अल्फा जनरेशन। अंशिका ने सुना होगा अल्फा जनरेशन, बीटा जनरेशन। बीटा इज ऑफ कोर्स मार्केट से आप कितना अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, दैट इज बीटा। अल्फा है कि मैं मार्केट छोड़ो, मेरे को मार्केट के ऊपर भी एडिशनली बहुत बेटर करना है, राइट? वो कंप्लीटली आउट ऑफ मार्केट का मेरे पास इनकम आना चाहिए, या रिटर्न आना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा जनरेशन। ना जनरेशन नहीं बोल रहा हूं, अल्फा जनरेट करना ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ओके, सो इन्वेस्टर यूज वेरियस अप्रोचेस टू कैप्चर दैट अल्फा। या बीटा तो कैप्चर होगा मार्केट से मैं थोड़ा सा अलग हो जाऊं, तो अगर मार्केट बोलता है कि अभी राइट है इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में, तो मैं थोड़ा सा अलग हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा ओके मैं ज्यादा लेता हूं फोकस इंडिया में। तो सब कोई 10% एक्सपोजर ले रहा है, मैं 12% लूंगा स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर। दैट इज बीटा थ्रू मार्केट चेंजेस। बट अल्फा इज दैट कंसेप्ट, ऑफ कोर्स आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, मैं एडिशनल ज्ञान दे रहा हूं, सो लेट मी एक्सेप्ट दैट। बट if you will understand, it will become a easy journey for you to understand next concept. कोई ट्रबल हो रहा है अल्फा बीटा इतनी बार यूज कर रहा हूं तो? नहीं नहीं ओके, गुड। सो नाउ सर, ये जो अल्फा आप बोल रहे हैं, दिस इज अ ये पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, दोनों सेंस में है या सिर्फ? दोनों सेंस में हो सकता है, लेकिन ट्राई हमेशा पॉजिटिव की ही बात होती है, होता हमेशा निगेटिव है। आज तक कोई अल्फा बना नहीं पाया है। मतलब अगर आप मार्केट देखोगे ना, तो यू विल कम टू नो, जितनी कंपनियां क्लेम करती हैं कि मैं एक्टिव इन्वेस्टर हूं, एक्टिव इन्वेस्टर का टर्म होता है अल्फा, या एक्टिव इन्वेस्टर का टर्म होता है अल्फा। थोड़ा सर्च करिएगा सुबोध जी, टिल द टाइम आई पिक अप द कॉल, कि अल्फा किसी ने जनरेट किया है क्या ओवरऑल 100 ईयर्स में?
ओए छोनू पागल है। ओ बाबा उनका भी नहीं चला है। So, did you find? तो स्टोरी ये है इन शॉर्ट, अल्फा जनरेशन इज वेरी डिफिकल्ट इन मार्केट. People who claims to be doing active investment on your behalf actually kills your even principal. Okay, that's the market. Correct. That's why passive investment has come into picture. Subodh ji, you love passive investment, aren't you? Even though you are a Yes. lover, उसमें पैसा बनता ही बनता है. थोड़ा सा टिल्ट लेना है and you follow exactly what market is performing over a period of time, you will make money. Now, बट फिर भी लोग अल्फा करते हैं, लोग पैसा वेस्ट करते हैं रजनी जी. बहुत लोग पैसा केवल अल्फा के लिए ही बचा के रखते हैं और उनको देते हैं, राइट, कि अल्फा जाके कैप्चर करके आओ. और शॉर्ट टर्म के लिए कैप्चर भी होता है, बट लॉन्ग टर्म में ऑलवेज अल्फा गेट्स वैनिस्ड बिकॉज सब आदमी उस तरफ दौड़ पड़ते हैं. जैसे पता चला क्रिप्टो करेंसी में पैसा बन रहा है, सब दौड़ेंगे क्रिप्टो करेंसी की तरफ, राइट. एंड देन सडनली दे विल रियलाइज कि कोई वैल्यू ही नहीं थी एंड इट विल क्रैश लाइक एनीथिंग. हुआ है कि नहीं है? कितनी बार आपने ऐसा सुना है? बबल ऑफ 2000, internet bubble of 2000, 2007 housing bubble of 2007, 2014 currency, etc etc, right. बहुत सारे 1987 में भी हुआ है, 1999 में करेंसी का एपिसोड आया है, ऑयल एंड गैस का सेक्टर में है. तो बबल हर एक जगह क्रिएट होता है एंड इट गेट्स बस्टेड एंड व्हेन इट बस्ट इट इरोड्स योर कैपिटल. Investor uses still various different tools for integrating and capturing alpha. But when you are ESG conscious, you will try to capture that alpha, beta, gamma, sigma, bigma, all through ESG integration. Where what will you be doing? You will be working on company analysis, asset valuations, portfolio decision making, and stewardship. Now, एक clarity आप लोग रखिएगा who has no background in investment. मतलब है लेकिन आप मतलब डेली फॉलो नहीं करते, वो लोगों के लिए मैं एडिशनल इनपुट बता रहा हूं. ऑलवेज रिमेंबर, कंपनी, एसेट, पोर्टफोलियो तीनों अलग चीज है, बट व्हेन दे कम टुगेदर Okay. So why investor integrate ESG? So we were there and we were just telling you that always understand company, asset, and portfolio. All three are different in basic sense as well, but always understand they are interlinked. Company is that part of asset which we are considering through a lens of equity, debt, or alternative investment. Asset is that part of portfolio which creates a additional advantage for you. Sometime keeping equity lesser might help you, sometime keeping equity higher might help your portfolio. समझ में इतना ये क्लैरिटी हुई? दिस इज वन. नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये दोबारा बता दीजिए. वेरी गुड, थैंक यू. आस्किंग मी क्वेश्चन हेल्प्स मी बेटर. तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि एसेट जो है, आपको एसेट तो मालूम है ना, इक्विटी, डेट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, ऑल दीज आर एसेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स. हर एक का अलग अलग पैटर्न होता है, रिटर्न होता है. दैट्स व्हाई दे काउंट, वी काउंट देम एज ए सेपरेट एसेट. यहाँ पे एसेट मतलब कंपनी का एसेट मत समझिएगा, एसेट मतलब इन्वेस्टर का एसेट. क्लियर? इक्विटी, डेट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. नाउ हर एक इक्विटी और डेट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट विल लिंक टू अ कंपनी. सो कंपनी इज दैट यूनिट जिसपे हम लोग इक्विटी भी बना सकते हैं, उसके लिए डेट का भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और उसमें हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं कि नहीं? कंपनी है, उसका उसने रियल एस्टेट मेरे से लीज लिया हुआ है, लीज पे उसने रियल एस्टेट लिया है, तो उसका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मेरे लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट उसका रियल एस्टेट हो सकता है कि मैं इस कंपनी के लिए केवल बिल्डिंग बना के दूंगा. कर सकता हूं कि नहीं कर सकता Yes. 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 एक्टिविटीज Yes. करती है ना. मैं बिल्डिंग बना के ऑफर कर दूंगा रेलवे को, राइट. दैट इज माई ड्यूटी फिनिश्ड, एंड आई विल अर्न मनी फ्रॉम दैट रिटर्न ऑफ दैट रियल एस्टेट.
क्लियर? दैट्स अल्टरनेटिव। इक्विटी क्या हो सकता है? आईआरसीटी का स्टॉक। डेट क्या हो सकता है? आईआरसीटीसी का बॉन्ड। दिस इज हाउ द एसेट वर्क्स, बट एसेट वर्क्स विद द लेंस ऑफ कंपनी। तो लिंक समझिएगा यहां पे, कंपनी इज ए यूनिट, प्लेग्राउंड इज ए यूनिट, एंड एसेट it gets you exposure to certain part of that unit। क्या, जैसे हमने डिस्कस करा ना, अगर बाढ़ आया तो जो कंपनी का डेट है वो तो सिक्योर्ड रहेगा, क्योंकि उसका मैं कुछ ना कुछ तो एसेट बेच के निकाल लूंगा पैसे। लेकिन जो इक्विटी है वो तो डूब जाएगी ना, तो लोग ही नहीं है तो काम कहां से होगा, रिटर्न कहां से आएगा? ये क्लैरिटी है? सो दैट इज द लिंक बिटवीन अ कंपनी एंड एसेट। थर्ड लेवल है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? कि मुझे एक्सपोजर चाहिए टू गेनिंग दैट अल्फा बीटा गामा ऑल दैट, आई नीड सर्टेन एक्स्ट्रा एक्सपोजर। तो वो क्या करते हैं? वो पोर्टफोलियो पे प्ले करते हैं। पोर्टफोलियो प्ले करने का मतलब, दे विल से कि कंपनी, तो मान लो मैंने कंपनी का रिसर्च किया 25 कंपनी का, और उसमें से 5 कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया। उस 5 कंपनीज में से 3 में मैं डेट में इन्वेस्ट करूंगा, 2 में मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। तो रेशियो क्या हो गया? 60-40 का। 60% डेट का एक्सपोजर है, 40% इक्विटी का एक्सपोजर है। आप ये बताइए विद अ कॉमन सेंस, will I get good return compared to when I have 60% equity and 40% debt? No. एब्सोल्युटली नो, क्योंकि डेट ज्यादा है तो रिटर्न तो कम रहने वाला है, राइट? सो दिस इज हाउ पोर्टफोलियो अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स यू। कंपनी का अंडरस्टैंडिंग ले लिया, आईआरसीटीसी, उसका डेट इक्विटी का अंडरस्टैंडिंग ले लिया, विच इज माई एसेट्स, एंड देन वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोर्टफोलियो। ये लिंकेज हमेशा समझिएगा, क्योंकि तीनों में हम जाके गेम कर सकते हैं रजनी जी। तीनों में जाके हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। कंपनी फोकस रहेंगे तो आई विल ओनली सेलेक्ट दोज कंपनी विच गिव्स मी द हाईएस्ट रिटर्न और लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो टाटा में करो या रिलायंस में करो, या रिलायंस भी तो लॉन्ग टर्म ही देता है, तो टाटा में करो या अडानी में करो। आज 4 टाइम पैसे बन रहे हैं, कल हिंडरबर्ग फिर से आ जाएगा तो आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। लाइक, सो दिस इज हाउ यू टेक एक्सपोजर टू कंपनी। एसेट वैल्यूएशन में मुझे इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा लगता है। इंडिया के इक्विटी मार्केट में बहुत दमखम है, अगले 50 साल तक मोदी रहने वाले हैं, तो मेरा बहुत रिटर्न बनेगा। लेट्स इन्वेस्ट इन इंडिया का इक्विटी मार्केट। तो आई विल टेक अ लेस एक्सपोजर इन डेट, फिक्स डिपॉजिट नहीं करूंगा। अगर मुझे लगता है अपोजिट, देन आई विल टेक अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड इज पोर्टफोलियो। चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विटी करे बेटर और या डेट करे बेटर, मैं पोर्टफोलियो लेवल पे गेम खेलूंगा। तो यहां पे मैं एडिशनल पैसे, हर एक लेवल पे एडिशनल पैसे आपके बन सकते हैं। दिस इज हाउ ईएसजी इंटीग्रेशन का पर्पस होता है। दिस इज हाउ यू डिसाइड वेदर आई शुड डू ईएसजी। अब ये मैंने आपको पहले अंडरस्टैंडिंग बता दिया एसेट्स के। अब कहीं भी मैं यहाँ पे ईएसजी इंटीग्रेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? नहीं समझ में आई तो बोलिएगा नहीं, राइट? कर कैन आई Yes. डू सकते इट और नॉट डू इट? या कर सकते हैं Yes, ना। yes. I can do it. I can decide which company to invest, whether he is doing ESG or not. I can decide which debt portfolio I should pick. Is it should be green debt portfolio, souvenir, green projects में डालना है या मुझे नॉर्मल में डालना है। आई कैन ऑल्सो डिसाइड ऑन माई पोर्टफोलियो लेवल कि कितने कंपनी मेरे को ग्रीन चाहिए और कितना मुझे नहीं चाहिए। And this is how I would be deciding my stewardship, which is getting engaging with these company at a level where I can make real difference to them and to my portfolio, my company, and my asset valuation. ESG analysis utilizes diverse data sources from commercially available databases to primarily analytical analysis and research करने के लिए, जो सुबोध जी एक्सपर्ट है, राइट? सो हम लोग केवल कमर्शियल अवेलेबल डेटा पे ही काम नहीं करते हैं, हम लोग ESG डेटा पे भी काम करते हैं। ठीक है, ये ESG का एनालिसिस का रूल है। देन थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट फर्म कैन और मे इंटीग्रेट ESG टू मीट देयर फिड्यूशियरी ड्यूटी। ESG केवल एक ही आम नहीं है रिटर्न का, इट ऑल्सो इनेबल्स यू टू एक्ट एज ए फिड्यूशियरी। मतलब मैं ओनर हूं उस कंपनी का, विच इज, पीपल आर गिविंग मी मनी विथ अ ट्रस्ट, राइट? वो लोग ट्रस्ट करके दे रहे हैं ना पेंशन फंड वालों को, कि पेंशन जब मुझे चाहिए होगा, जब मैं काम नहीं कर सकूंगी या सकूंगा, तो वो मुझे पैसे आने चाहिए। जब काम कर सकूंगा तो मुझे पेंशन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन नहीं कर सकूं तो पैसे आने चाहिए, राइट? या हम लोग इंश्योरेंस भी उसी पर्पज से करते हैं, जब मैं कैपेबल नहीं हूं तो पैसे आने चाहिए। In both time, these two guys, the insurance company guys and the pension fund guys, has a fiduciary responsibility. What is that?
कि whenever that guy needs the money, I should invest in a company who should give me the return that day. ये फिड्यूशियरी ड्यूटी आप अप्लाई कर सकते हो क्या जस्ट फाइनेंशियल एक्सपोजर लेके? जो भी ये कहता है आज के डेट में वो गधा है, मतलब जस्ट टू पुट इन colloquial लैंग्वेज, ही इज मैड, right? He is not understanding a value of sustainability. He will never be able to recover their money. This concept, souvenir banks, souvenir wealth funds, SWF, has understood 15 years ago. ये जो कंसेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं, ट्राई टू प्रीच लॉट ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड कंट्रीमेंस, ने सेयर्स, कि भैया कंसेप्ट है, आप जाके उनके पेंशन फंड वालों से बात करो एक बार, या जस्ट ओपन ओपन एनी पेंशन सोवेनियर वेल्थ फंड का पेंशन का इन्वेस्टमेंट, यू विल सी मोस्ट ऑफ देम हैज इन्वेस्टेड. First, initially, they used to invest in conservative products like debt, bonds, etc. Later on, they decided they will invest in a company which is ESG compliant. इसीलिए 50%, 40% of today's asset under management is in the green. Even though some company are taking back, but they are managers. They are not the actual fiduciary guys. And fiduciary, if you want to meet the fiduciary obligation, you need such kind of aspect of the business. Fiduciary duty and risk and return is that part which you have to understand very clearly. Despite some professional not integrating ESG, regulations like European Union shareholder right directive, this is a word used in the book, so remember this. Okay, shareholder rights directive, we have also learned in chapter number 6 and 5, where the governance has been talked. This particular area puts you in that spotlight that बाबा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना कस्टमर के बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ पे, या तो आपको फिड्यूशियरी ड्यूटी उसकी लेनी होगी. I have already cited one case study in US where company like BlackRock has stuck in American Airlines के pension fund के साथ. Have you seen that? Have you remember? Do you remember that? We have discussed this, I think, in module 2, हाँ right? जी, हाँ Yeah, very much so. है ना, उसका ब्लॉग भी है, you can go and read. So Yes, lower yes. the investment risk is the investor aim. Eventual is they want to reduce the risk but not the return. याद What रखिएगा. your shareholder right directive? Shareholder right directive is the European Union directives where they have a right on your company, and that will create a fiduciary duty to investor. Whoever is investing on their behalf, शेयर होल्डर कौन है? पेंशनर है ना, मतलब जस्ट आपको हाँ पेंशन फंड का हाँ, एग्जांपल दे ठीक रहा हूं. है. तो उनके लिए यूरोपियन यूनियन ने डायरेक्टिव्स बनाई हुई है, जो एक डॉक्यूमेंट है जो आपको रीड करना है और मीट करना है इफ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन देयर बिहाफ. ठीक है, और वो आपको फिड्यूशियरिटी क्रिएट करता है और कुछ नहीं. आपको फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज ए मैनेजर और अ बैंकर फॉर दोज काइंड ऑफ एसेट्स. More tools and techniques are now available to reduce this investment risk, not by reducing the return. Always understand, हमेशा नॉर्मल मार्केट में क्या होता है? रिड्यूस रिस्क, रिड्यूस रिटर्न, सिंपल है, एप्पल टू एप्पल. बट ईएसजी मार्केट में, क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा सिग्मा मार्केट हम लोग लुकआउट कर रहे हैं, ईएसजी को उस पॉइंट से भी देखा जाता है कि आई शुड रिड्यूस माई रिस्क बट नॉट माई ईएसजी अपॉर्चुनिटी. आई शुड ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटीज अलोंग विथ इट, एंड दैट इज द गेम चेंजर. आप समझ रहे हो? अगर आप बॉन्ड पे किया, फंड, यस. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड तो 8% मिलेगा ना, रिस्क नहीं है, ठीक है, भागेगा नहीं, बट डबल करने में आपको 15 साल लगेंगे. लगेंगे कि नहीं लगेंगे? सर, जो म्यूचुअल फंड होंगे, जो क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें तो इंसेंटिव ज्यादा होता है ना, अगर होता है तो. इंसेंटिव मतलब क्या बोल रहे हो आप? मीन्स रिटर्न्स. रिटर्न, यस ऑफ कोर्स, म्यूचुअल फंड में 20% तक भी जाता है और कम रिस्क के साथ. म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा प्रोडक्ट है विच रिड्यूसेस द रिस्क बट नॉट द रिटर्न. व्हाई? क्योंकि वो बहुत शार्प फंड मैनेजर्स लेके आते हैं जिनका काम ही यही है कि आपको रिटर्न ज्यादा करा के दे. बट फिर भी एक लाइन भूलिएगा नहीं, म्यूचुअल फंड सही है, याद रखिएगा. म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अंडर द रिस्क बड़ा. आई सब्जेक्ट टू होप मार्केट रिस्क, सर. you have understood, I hope. Right? So while not universally believed to lead the better risk adjusted return, but these tools definitely aid to your tools which are available under the financial risk and return calculation. With this we will end the session for today. I don't want to overload. इस चैप्टर में थोड़ा और स्लो जाने वाले हैं. तो इन्वायरमेंटल में हमने 4 सेशन लिया था, इसमें हम लोग कम से कम 5 सेशन. एनवायरमेंट में आपने 6 सेशन लिए थे.
सेशन लिए थे, ओके। तो इसमें कम से कम अब हम देखिए अपना वो क्लास रिकॉर्डिंग 6। मैं तो देखता नहीं ना, खुद की रिकॉर्डिंग कौन देखता है, राइट। नहीं नहीं, वो जो लिस्ट है, डॉक्यूमेंट है। फॉर श्योर। सो इसमें आपको एक दो सेशन इधर उधर होंगे, राइट, थोड़ा ज्यादा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्लो जाएंगे। एक प्रेजेंटेशन का सेशन होगा, दो मुझे लगता है लगेगा। अंशिका भी निकाल रही होगी, तो वी विल गेट दैट आइडिया कि कितने केस स्टडी हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट केस स्टडी वी विल गो अहेड। ठीक है, तो 2 दिन उसमें जाएंगे, और उसके अलावा ये थोड़ा 10 मॉड्यूल्स, 10 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, तो थोड़ा टाइम लेंगे हम लोग। ठीक है। तो हम कितने टाइम में खत्म कर देंगे मतलब पूरा? इसके बाद नहीं, दो तो चैप्टर सेशन और है ज्यादा ना? होंगे, पॉइंट ये है ना, सेशन ज्यादा होंगे, थोड़ा अप डाउन टाइमिंग में होगा। सो बी रेडी फॉर इट। ठीक है। वर्किंग डे में कर लेंगे ना तो सर आप ज्यादा टाइम दे पाते हैं, संडे को आप थोड़े ऑफली बिजी होते हैं। नहीं नहीं, ऑफिशियली इस बार बिजी हूँ, बट हर एक बार नहीं रहता हूँ। बट एनीवे, यस वी विल डू इट फॉर श्योर। वीकडेज में करेंगे, वीकडे में एक दो सेशन करना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिनिश नहीं होगा। क्योंकि इसमें कम से कम 6 सेशन तो जाएंगे मिनिमम। मिनिमम की बात इसका 20 to 30% वेजेस, एवरेज 25%। कर, तो थोड़ा टाइम लेना चाहिए ना। अगर इस पे रश हाँ, इट करेंगे हाईएस्ट तो ट्वेंटी फाइव परसेंट yeah, एवरेज इज 25%, 20 to 30 दिया है रेंज। that is why I'm saying focus. My focus is this: you get it completely in your hand. क्योंकि नेक्स्ट टू में ये हाथ में आ गया ना, तो नेक्स्ट टू थोड़ा कम भी हाथ, और वो आएगा कम हाथ। उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत फाइनेंशियल जगलरी है। ठीक है। तो थोड़ा कम भी हाथ में आएगा, तो 20% यहाँ आपके बन गए, 20 से 25। पंद्रह पच्चीस से बीस पच्चीस है इन्वायरमेंट 15 से 20 आपके, 8 से 15 आपके, 15 से 20 आई बिलीव इन्वायरमेंट में भी। नहीं, 8 से 15 है। आठ से 8 पंद्रह से 15। 8 से 15 वहां पे कैप्चर हो गए, तो 20। 1+2 8 से 15, सोशल, एनवायरमेंट, गवर्नेंस, तीनों तीन 8 से 15। इन आठ पहले से 5 चैप्टर 8-15, 8 से 15, 8 से 15। और ये एक दो मिल से, एक दो मिल के 8 से 15 है। तो 8 से 15, और चार है। ये ईएसजी तीनों 8 से 15, ये 8 से 15। तो ईएसजी में आपको कोई ट्रबल होना नहीं चाहिए। उसके बाद वो दो जो छोटे चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर है, कीवर्डशिप उसका 5 to 10 हाँ, उसमें तो पक्का आप लोग बजा के आइए। ये 5 to 10 है, और लास्ट वाले में 5 to 10 है। बस आपने 5 चैप्टर भी अच्छे से किया, तो यू हैव कवर्ड अराउंड 70%। ओके। वन इज दिस, अनदर इज एनवायरनमेंट, एंड द थर्ड इज, बाकी सब तो कॉम वो नहीं। हाँ, बट मेरा फोकस होगा कि इन्वायरमेंट आपका पक्का होना चाहिए। सोशल तो छोटा चैप्टर है, वो वो तो पक्का होना चाहिए। गवर्नेंस थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं उस पर पूरा 100% फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये वो सब पहले दो भी इजी है सर, ईएसजी एंड एएसजी आप मार्केट। लोगों के लिए इजी हो जाएगा, दूसरे पार्टी के लिए जो जिनका एक्सपोजर नहीं है, मतलब इन्वेस्ट ये बोर्डशिप में, उनके लिए थोड़ा टफ है। तो उनके लिए मतलब वो बहुत याद करना पड़ेगा आपको, सारे यूके के रेगुलेशन, यूएस के रेगुलेशन, इंडिया के रेगुलेशन, तो थोड़ा सा क्लमजी है। बट इफ यू रीड इट प्रॉपरली, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, एंड ऑफ चैप्टर करिए। मैं हर एक में एक एक और एंड ऑफ चैप्टर ऐड कर रहा हूँ डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। ओके। सो वो आपके पास काफी रिसोर्स होगा कि आप उसको प्रैक्टिस करो। तो अगर आपने ये सारे चैप्टर कवर किए, मुझे लगता है 70% आपका कहीं नहीं गया। आपको स्कोर उतना ही करना है, एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है। रोकेगा नहीं कोई, क्योंकि अब मुझे दूसरे आदमी को ही फेल करना है ना, तो जो मेरे बैच में नहीं है फेल होगा। अब अंशिका का क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है, कब तक खत्म हो जाएगा? वो तो नहीं खत्म होने वाला है, ये उसका आंसर, ये उसका क्वेश्चन ही अलग है। उसका क्वेश्चन ये है ही नहीं। उसका क्वेश्चन है कि क्या मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ जुलाई के एग्जाम को। ये हाँ, तो जुलाई में खत्म होगा कि नहीं? उसके लिए थोड़ा टाइम सबको निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं अगर तो सर टेंटेटिवली आप बताइए, अगस्त सितंबर? मैम आई अगस्त एम सितंबर रनिंग इन नहीं, मेरे ऑगस्ट। को जुलाई में पेपर देना है। उतना में खींच भी नहीं पाऊंगा ना। ये मतलब क्या तो पूरा हमारे साल का लिए प्रोग्राम थोड़ी जिन्होंने कर अभी फॉर्म नहीं भरा, उनके लिए हम पूछ रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर कब, क्योंकि बहुत। सितंबर अक्टूबर मत करो आप, क्योंकि फिर आप बॉर्डर लाइन पे आ जाओगे। बॉर्डर लाइन मतलब क्या, नया चेंज हो जाएगा सिलेबस दिसंबर में जाने के बाद। तो आप अगर अगेन अटेम्प्ट भी करोगे ना, अगर मान लो करने की कोशिश करी आपने, तो यू विल नॉट हैव अ चांस। देन अगेन आपको फिर से प्रिपरेशन, कम से कम 30% दे विल चेंज एवरी ईयर, दे चेंज 20 to 30%। आइडियल टाइम और आइडियल टाइम रखिए आप लोग जुलाई अगस्त। आई विल सजेस्ट, क्योंकि उसी टाइम पे मैं आपका ये भी करा दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, कैंप, एंड वी विल क्लोज इट ऑफ। ठीक है, थोड़ा स्पीड अप मैं तो अगस्त होगा। प्लान कर रहा हूँ, आई एम प्लानिंग बिटवीन 10 to 15 अगस्त। थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन उससे पहले रखेंगे तो बेटर है। बट एनीवे, इट्स योर कंफर्ट, आई विल नॉट फोर्स यू टू टेक विच डेट।
बट जुलाई एंड अगस्त उससे ज्यादा आपने लिया तो यू विल बी ऑन बॉर्डर लाइन। और थोड़ी देखिए, ये माइंड गेम ज्यादा है रादर एग्जाम। आपने देखा क्या हुआ है वहां पे, वो जो टेस्ट किया मैंने मॉक, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता होगा, आप एक बार जाके देखना। इंग्लिश वॉज द प्रॉब्लम देयर, टाइम वॉज द प्रॉब्लम देयर, सब आदमी अपना अपना बता रहे हैं ना, या मैंने पढ़ा ही नहीं। हम्म, अब पढ़ा नहीं तो ऑफ कोर्स अब क्या कर सकते हो आप। ऐसा नहीं था सर, देखिए, पढ़ा थोड़ा बहुत तो सबने देखा ही होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं देख पाया ऐसा नहीं था, 62 नंबर आए, बट लगा यार ना, सेटिस्फाइड नहीं है। रजनी जी 66 नहीं आए मैं सबसे हाईएस्ट, या ऑफ पता कोर्स है। जर्जिका को मैं इसमें इग्नोर कर रहा हूँ, बट 66 आए हैं हाईएस्ट। अच्छा। राइट, तो 62 बहुत खराब नहीं है, आपको लग रहा खराब है क्योंकि आप स्कोर 99 करते हो तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन वो पॉइंट है नहीं। आपने अच्छा स्कोर किया है कंपेरेटिवली। ट्रबल कहाँ है, जो हमने 40 मार्क लूज करे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब वो कहाँ लूज किए, वो अब हम्म, आ गई है शीट, अब देखती हूँ कहाँ लूज किए। जी, ऐसा ही सर, मॉक टेस्ट अपना 1 2 3 का हो गया, 4 5 का भी ले लीजिए। 4 5 6 का होगा, और नहीं होगा तो बता। एक बार फिर 1 2 3 का ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, बहुत श्योर। क्वेश्चंस का नंबर जरूर डालिएगा उसमें, पता है पैनिक हो रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं बचा, जबकि टाइम बहुत बच गया था। अच्छा, ये भी हुआ है क्या? यस, नंबर नहीं दिया था ना, हमें पता ही नहीं था मैंने कितना अटेम्प्ट कर लिया। नंबर नहीं वो दिया था। नीचे वाले कॉलम बार से ही हम लोग समझ रहे थे कि बचा है बचा है बचा है अभी, तो थोड़ा वो पैनिक हो रहा था। ओके, ओके, बट टाइम आप कह रहे बचता है, और मैंने देखा टाइम मैंने आधे टाइम में ही कर दिया था। आई राइट, वुड हैव रेड इट एंड क्योर्ड माय मिस्टेक्स। फेयर, फेयर। ठीक है, करते हैं 100%।